Today's topic is history and origin, botanical characteristics, and cultivation of tobacco. For this presentation, credit goes to Samarth Bharadwaj. Contents are history, origin of tobacco, botanical characteristics, and cultivation of tobacco. First, history and origin. American Indians use tobacco as a smoking of the pipe of peace. Means जब हमें शांति चाहिए होती है for our mind peace, this tobacco has been used as the pipe of peace. Tobacco is an American gift to the people of the old world. In 1492, when Christopher Columbus arrived on the islands of Tobacco, found natives using tobacco leaves for smoking, that is called handmade cigars, snuff as a chewing material. And Columbus then brought back home some tobacco leaves and seeds from the island of Tobacco. In 1558, a Spanish physician introduced tobacco in Spain, and from there it spreads to southern Europe and Middle East. And in 1560s, Jean Nicot, a French ambassador to Portugal, introduced tobacco in France. And Linnaeus then named tobacco as Nicotiana in the honor of Jean Nicot. In 1565, Sir John Hawkins introduced Florida tobacco in England, where a smoking habit was popularized by Sir Walter Raleigh. And in 1612, John Rawls started selling tobacco commercially to earn money at Jamestown in Virginia. And at 17th and 18th century, tobacco was considered as panacea. It means cure for many diseases. It has those abilities, those properties tobacco has that can cure many of the diseases if used properly. And nowadays, more than 1.5 billion people all over the world, despite health hazard warnings, means it is harmful for our body. Still, people are using it regularly. It combines four economic properties, means four that huge properties from which we can earn money by selling tobacco or people are using that. First is medicinal, दवाइयों में बहुत यूज होता है इसका. Next is insecticidal, means other mosquito repellents we can quit using those and ये हम natural remedy अपना सकते हैं. उसकी जगह उसकी लीव्स होती हैं, उसको जला सकते हैं, अपने बेड के पास रख लीजिए एंड देन इंसेक्ट्स आपके पास नहीं आएंगे. नेक्स्ट इज मैस्टिकेटरी, मीन्स टू chewing for chewing purposes, means जिनको नशा होता है या they do somewhat like that to chew it for its taste or they have been addicted to it. And fumitory means for smoking purposes, that snuff, cigars, and that sort of things are used nowadays and how now become world's most important fumitory. Means the smoking thing is of tobacco is popularized so much. There are mainly two species of tobacco cultivated worldwide. Means earlier so many species were cultivated and then two main species are selected by genetic breeding or somewhat that, and two species are selected which are best considered best in the world. First is Nicotiana tabacum, that is basically used for masticatory purpose and it is of native of South America, Mexico, and it has been made by breeding the Nicotiana sylvestris, that is 2 and 24 chromosomes, and Nicotiana autophora, it is 2 and 24 chromosomes, and Nicotiana tabacum has been made of 2 and 48 chromosomes, and it is cultivated in US, Brazil, China, India, Japan, Indonesia, etc. And second is Nicotiana rustica, and it is mainly used for the fumitory
fumitory processes. And native of Mexico, Texas, it has been obtained by breeding two, that is Nicotiana undulata, Nicotiana paniculata. Both have 24 chromosomes, and Nicotiana rustica has been obtained. 2n is equals to 48. Cultivated in Turkey, CIS, India, and some European countries. Now, botanical characteristics of tobacco. Nicotiana tabacum. About its plant body, it is a stout, sticky annual herb. Means it is a herb. It has a height of about 1.2 to 2.7 meter when not topped. Topping is a process which is being done in cultivation of tobacco, is explained later, and it really assumes shrubby appearance. Means इसका जो appearance होता है वो थोड़ा shrub जैसा होता है due to lateral branches near the ground, because जो lateral branches होती हैं वो नीचे की side grow कर जाती हैं, and it has been confused that it is a shrub, but it is a herb. Next are leaves. Leaves are large, ovate or oblong, means bade, or ovate means more or less likely like egg. बड़ी होती हैं, large. Lanceolate. Lanceolate means it has a pointed sharp end, and usually sessile. Sessile means it has not petiole. The leaves are directly attached to the stem with clasping leaf bases. Means clasping means बिल्कुल अच्छे से लीफ के नीचे एक बेस होता है जो उसको अच्छे से पकड़ा हुआ होता है ताकि लीफ प्रोटेक्टेड रहे. नेक्स्ट इज ग्लैंड्यूलर हेयर्स होते हैं. दीज आर द एक्सटर्नल, वी कैन से, special types of tissues that is present on the surface of leaves which secretes gums and oils, makes surface sticky, and these gums and oils has been used economically for our purposes. And next is flower. Flower is tubular, born in a terminal panicle, means जो बिल्कुल पेनिकल का एंड होता है वहाँ बॉर्न होते हैं. फ्लावर एंड यूजुअली पिंक, बट मे बी कैरामाइन और वाइट कलर के भी हो सकते हैं. मीन्स वाइट से पिंक कलर के येलोइश अपीयरेंस में होते हैं इसके फ्लावर्स. Looks like this. Nicotiana tabacum. These are the leaves, lanceolate, and the tubular, and fruit are two-walled ovoid capsule. टू-वॉल्ड के फ्रूट्स होते हैं, एंड समटाइम्स फोर-वॉल्ड भी होते हैं उसमें. मीन्स means this is a fruit, and if this is called two-walled, one and two, and if the fruit is four-walled, this is how four-walled fruit. Now with numerous tiny. Now Nicotiana rustica, it looks like this somewhat, and plant body is small, plant height about 0.6 to 1.2 meter, thrives well in extreme climate, usually developing suckers, means lateral shoots. Suckers वो होते हैं जो newly born birds grow करती हैं ना at the tip or somewhat, that are called suckers, and leaves are short but thick. लीव शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू निकोशियाना टबैकम. शॉर्ट होती है बट उससे थिक होती है. ब्रॉडली ओवल एंड पिटियोलेट, मीन्स हियर पिटियोल इज प्रेजेंट, लीफ इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम, एंड विद अनइवन पकर्ड सरफेस, मीन्स सरफेस जो होता है वो उसका अनइवन सा होता है, that is called puckered surface. And in flowers, flowers are campanulate and are pale yellow to green in color. Campanulate means bell like flower, like the flowers looks like bell shaped. Now cultivation of tobacco. Requirements:
It is a crop of tropical climate, means where ना ज़्यादा ठंड होनी चाहिए और ना ज़्यादा गर्मी, बट कैन बी थ्राइव्स वेल इन ऑल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, मीन जो इंडिया की मोस्टली एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ टोबैको को हम ग्रो कर सकते हैं. एंड इट डिमांड्स प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर इन अर्ली एंड मिडिल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, मीन जब ये इसको ग्रो किया जाएगा या इसका मिडिल सीजन जो होगा, जो पीक सीजन कहते हैं जिसको, वहाँ इसको प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर चाहिए होगा, मीन्स हवा में नमी होनी चाहिए. इट रिक्वायर्स एवरेज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस and crop attains maturity within 100 to 130 frost free days from the date of transplanting. मीन्स पहले इसको हमें नर्सरी में ग्रो करना पड़ेगा, जब ये थोड़ा ग्रो हो जाएगा मीन्स खुद से इंडिविजुअली अलोन सर्वाइव करने लायक हो जाएगा मेन फील्ड में, जब हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे उसके 100 to 130 डेज के बाद ही इसकी मेच्योरिटी आ जाती है. और वो डेज क्रूशियल होते हैं क्योंकि हमें वो फ्रॉस्ट फ्री चाहिए होते हैं. फ्रॉस्ट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए. बर्फ़ जो जमने लग जाती है, हल्की सी ओस आती है जो हमारी हवा में, वो नहीं होनी चाहिए. एंड इट कैन बी ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल लोम और सिल्ट लोम सॉइल्स, मीन्स सॉइल्स हम वेराइटी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर सॉइल में ये ग्रो करेगा विद द pH ऑफ 5 to 6.5 विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल. एंड प्रायर टू सोइंग, मतलब सीड सो करने से पहले सीड बेड शुड बी फर्टाइल एंड प्रिपेयर्ड विद टिलेज, मीन टिलेज उसकी प्रॉपर होनी चाहिए. मिट्टी को कहते हैं भुरभुरी होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए कि उसकी प्लेट्स बन रही हैं या उसके स्टैक्स बन रहे हैं वहाँ पे, और फर्टाइल होनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसमें जो उसको चाहिए. सीड बेड्स आर आइदर स्टीम स्टेरलाइज्ड और फ्यूमिगेटेड विद क्लोरोपिक्रीन. जो सीड बेड्स जो हम बनाएंगे नर्सरी में उसको ग्रो करने के लिए, वो स्टीम स्टेरलाइज होने चाहिए, मीन्स पहले से उस स्टीम के साथ ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी पहले से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ताकि जिससे हमारा प्लांट बाद में खराब हो. या फिर फ्यूमिगेटेड या फिर स्प्रे होना चाहिए विद क्लोरोपिक्रीन मिथाइल ब्रोमाइड टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट डिसीजेस एंड अप्लाई पोटैश, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ताकि उसको पहले से कोई इन्फेक्शन ना हो, सीड में कुछ कंटेमिनेशन ना हो और उसको सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलें ग्रोथ के लिए. सीड्स आर ऑफन मिक्स्ड विद सैंड और फर्टिलाइजर्स एंड देन सोन ब्रॉडकास्ट, मीन्स पहले सीड को हम मिक्स करेंगे सैंड और फर्टिलाइजर्स के साथ जो हम करते हैं एक जगह पे बहुत अच्छे से किसी एक पेटोग्राम में, उसके बाद हम उसको ब्रॉडकास्टिंग जो सीड सोइंग होती है सीड्स को फैलाते हैं, मतलब प्रॉपरली स्पेस देके उसको सीड्स को हम इसको सो नहीं करेंगे, इसमें हम ऐसे थोड़े से सीड्स लेंगे और हाथ से फैला देंगे एकदम से, वो ब्रॉडकास्टिंग होती है सीड की. एंड दे आर लाइटली कवर्ड विथ सॉइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. ये लाइटली कवर्ड होते हैं सॉइल से, मीन्स हल्का सी सीड्स सो कर दी उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी हम उस पर मिट्टी डाल देंगे ताकि कवर हो जाए और सीड्स उड़ ना जाए. एंड बेड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए बाय मीन्स ऑफ मसलिन और चीज क्लॉथ. ये ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो हम प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं सीड बेड्स को ताकि उसको प्रॉपर एयर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर सब कुछ मिले. बस डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, सनलाइट मिलनी चाहिए बट डायरेक्टली उस पर नहीं पड़नी चाहिए, या फिर चॉप्ड ग्रास से भी कर सकते हैं. एंड सीड रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर अबाउट 20 ईयर्स, मीन्स एक बार सीड बन गया तो वो 20 साल तक वायबल रहेगा, मीन्स हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं 20 साल तक और कभी भी हम उसको ग्रो कर सकते हैं, सो कर सकते हैं. एंड आफ्टर 2 to 2.5 months व्हेन सीडलिंग्स आर 10 to 15 सेंटीमीटर टॉल, इतने हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, दे कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू फील्ड आइदर बाय मैकेनिकली और बाय हैंड्स, जैसा हमें सूटेबल लगे. And desuckering. These are the two main important processes which we have to follow when we are cultivating the tobacco plant. First is topping. Topping क्या होती है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा plants को काटना. When the flower buds begin to appear, the inflorescence and topmost leaves are plucked by head. मीन्स जो सबसे ऊपर की leaves या flowers, जब flower की buds आने लग जाएंगी तब हम जो सबसे ऊपर की leaves हैं उनको हम pluck करना start कर देंगे hand से, which greatly improves the size and quality of leaves, जिससे जो leaves की quality और size है वो बहुत अच्छी होती है, टोबैको में करना पड़ता है. एंड टोबैको इंटेंडेड फॉर यूज इन बीडी, मतलब जिससे टिपिकल बीडी बनती है जो जिसे हम बोलते हैं, एंड फॉर च्यूइंग पर्पसेस, और जो टोबैको वगैरह वैसे बनते हैं जो आते हैं ब्रांड्स स्टॉप्ड हैवीली, उसको हमें ज़्यादा टॉपिंग करनी पड़ती है जिसकी लीविंग अबाउट 8 to 10 लीव्स, सिर्फ 8 से 10 लीव्स हमें नीचे छोड़नी है, बाकी ऊपर की सारी हम उसे अलग कर लेंगे अपने हाथ से, तभी वो बेस्ट यूज़ के लिए होती है हमारी टोबैको बनाने के लिए और बीड़ी बनाने के लिए.
एंड देन डीसकरिंग, सकरिंग क्या होती है, वही जो न्यू फ्लावर बर्ड्स अपीयर होते हैं, तो टॉपिंग के बाद ही सकर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सिलरी वर्ड पे न्यू स्टार्ट ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दी शुड बी रिमूव्ड अदर बाय हैंड और बाय द यूज ऑफ सकर सप्रेसिंग केमिकल्स, या तो हम केमिकल्स डाल सकते हैं उस पर या फिर हम उन्हें हाथ से रिमूव कर सकते हैं। इट्स बेटर कि हम हाथ से रिमूव करें ताकि उसमें कोई केमिकल्स ना जाए बाद में और ज़्यादा हमारे लिए वो हेल्थ के लिए खराब ना हो, एज मेलिक हाइड्राजाइड और लाइट ऑयल्स। इफ नेसेसरी द डीसकरिंग प्रोसेस इज रिपीटेड लेटर, अगर ज़रूरत हो तो बाद में भी ये प्रोसेस हमारे रिपीट होंगे। इन 90 to 130 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांट करने के मीन नर्सरी से मेन फील्ड में लाने के 90 से 130 दिन बाद, व्हेन कलर ऑफ लीव्स स्टार्ट चेंजिंग, जब लीव्स का कलर हल्का सा ग्रीन टू ग्रीनिश येलो हो जाए और बिकम ब्रिटल एंड टफ, मीन जो लीव्स हल्की सी टूटने लग जाए हमारी, लीव्स टूटने लग जाएंगी और थोड़ी टफ हो जाएंगी, सॉफ्ट नहीं रहेंगी, इंडिकेट्स दैट क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। ये तो बेसिकली सब प्लांट्स का होता है कि जब लीव्स जो है ग्रीन से ग्रीनिश येलो या येलो की टर्न होनी स्टार्ट हो जाए तो वो हार्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट ऑप्टिमम टाइम है। द लीव्स राइपन फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट अपवर्ड, मीन्स जो लीव्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की साइड ग्रो करती हैं प्लांट के। आइदर द एंटायर क्रॉप इज कट ऑफ, या तो पूरा प्लांट कट करेंगे हम क्लोज टू द ग्राउंड, और मैच्योर लीव्स आर पिक्ड इंडिविजुअली बाय हैंड, या फिर हम लीव्स को इंडिविजुअली हैंड से पिक कर लेंगे, फिर नई लीव्स ग्रो कर जाएंगी एज प्रूनिंग, जिसे हम प्रूनिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग एंड प्रूनिंग, कटाई छटाई कहते हैं हम जिसे प्लांट की जो हमें करनी चाहिए। एंड दैट मैच्योर लीव्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार्स एंड सिगरेट्स। फिर जो मैच्योर लीव्स हो जाएंगी वो टोबैकम निकोशियाना टोबैकम की हम सिगार्स या सिगरेट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेश लीव्स कंटेन एज मच 75 to 85% moisture. Freshly harvested leaves are strung to poles or loads and are allowed to wilt overnight in the field. उसमें मॉइस्चर होता है, जैसे हम पिक करेंगे, हम उनको प्रूनिंग करेंगे हम लीव्स की, उसके बाद उसमें मॉइस्चर होता है बहुत सारा, तो उसको सुखाने के लिए हम उसको पूरी रात के लिए रख देते हैं। टेकिंग केयर दैट दे आर नॉट ब्रूज्ड और फोल्डेड, मतलब फोल्ड और ब्रू मतलब एक दूसरे पर एक चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है बिल्कुल सबको प्रॉपर अमाउंट में सबका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और किसी में मॉइस्चर ज़्यादा ना रहे। एंड आर देन क्योर्ड इन स्पेशली डिज़ाइन बार्न्स, एंड देन उनकी क्योरिंग होती है, मीन्स उनको अच्छे से और सुखाया जाता है, उनकी डिज़ाइन बार्न्स होती है। थैंक यू।